So what made you, shift from being a veterinary surgeon to becoming a civil servant? I got into veterinary college not by choice but by compulsion. But I had this, I was good at studies also. I had this in my mind that I had to move out of this profession. And one thing I miss from my those school or college days, मैटाडोर का कल्चर. मुझे याद नहीं से लास्ट टाइम मैटाडोर का कल्चर. Okay. उसी मैटाडोर में चढ़ना, परेड से जैसे गए, परेड से जानीपुर रहते थे, और उसी पे चढ़ना जो सबसे बेहतरीन क्या लगा. From your perspective, right? Where do you see Jammu 10 years from now? कोई भी शहर जो है, अगर वो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको अपने आप को बदलता नहीं है, समय के जरूरत के हिसाब से, वो शहर इतिहास का हिस्सा बन जाता है. तो जम्मू को भी उसी तरीके से अपने आप को इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर थिंग्स, इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ. So we have today with us Dr. Arun Manas. Arunji is a KS officer in the J&K government, and he's a friend also. Arunji, welcome and thank you for coming. Thank you very much. So he's actually the person who asked me that I should start a podcast. So again, thank you for that also. So let's start with a brief about your journey. Right, so you're a doctor also. So how did that start, and how did it transition into civil services? First of all, thank you, Sahil, for inviting me. Yes, we discussed because books have been your passion. We have been discussing a lot of books, and I thought it's better to converse, engage with the people, so that you bring something out of them, their thoughts, so that people are benefited. Having said that, I have been born and brought up in erstwhile Doda district. I was born in a beautiful town of Bhadarwa. I did my schooling from a town called Kishtwar. It's one of the largest town of district Doda right now. I studied there till 9th class. Then I moved on to Bhadarwa. I did my class 10 there, and during the early 90s, when militancy started in our district, then we had to move to Jammu, because 92 our house was also attacked. So since 92, 30th December, we landed in Jammu, and from that time till now we are here. I did my class 12 from MITE, a Model Academy. Yeah. Class 12, and then I did my bachelor's in veterinary sciences from Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Araspura, and I also served as a veterinary assistant surgeon for 3 years. So 3 years. Yeah. Then in 2004 I got into services. So Yes. You got into veterinary services. Was it something that you liked doing, that you wanted to do, or sometimes things just happen? कोई और कर रहा है तो आप भी ठीक है, अच्छा लग रहा है profession. No, it was not a profession by choice. I couldn't get through MBBS. Okay. So I got into BVSC and veterinary college, and when we came out, and we were pretty young when we got the job, I did serve the department for 3 years, because in our days the examination would take 2-3 years. Civil services. This state Civil services. So in 2004 batch I got into JKS, and it is more than 21, 22 years of my service in bureaucracy. So, but from being a veterinary surgeon to civil services, KS, so what made you, shift from being a veterinary surgeon to becoming a civil servant? Well, initially, I mean, when you are in class 12, you are at crossroads of your careers. Many careers, you don't choose them. I mean, during our times, either we could be engineer or could be doctor. Yes. Then I got into
veterinary college, not by choice but by compulsion. But I had this. I was good at studies also. I had this in my mind that uh, I had to move out of this profession because somewhere I thought even parents would think that he has much more in him than is right now. So I studied, and luckily I got into job. I was earning salary also. My boss is there in the department, late Dr. Tariq. Uh, he helped me a lot. He said, "Kini, you should move out. You should work hard." And he helped me a lot. Then 2004 I got into this. But yes, it was more of a kind of that I wanted to move out. So we studied hard, and eventually I got into this state civil service. So state civil service was something that you wanted to do, you thought about. Not really. I mean, the students in our times. I mean, this thought came pretty late. I mean, I'm in a veterinary college, and I mean, then we would start thinking, no, अगर we have to change the profession. कहाँ जाना है? तो Right. सिविल सर्विसेज क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएट हो जाएंगे, बिकॉज प्रोफेशनल डिग्री तो है ही है, नौकरी भी लग जाएगी अगर. Then we thought of let's get into the civil services. Right. Then you're in a veterinary college, then choice of subjects also, it was a pretty Herculean task at that time. You started with a subject, then you switch on to some other subject. But yes, it was the thought came pretty late. Nowadays, children, they start when they just pass 12th, and they like in their graduation they think of clearing. And if you could see that large number of students in our times, it could be hardly one or two. Nowadays we have a lot of 15, 20 students clearing civil services. So it was like a later thought out. Okay, now I want to switch, and what is the best profession that I can get into? Either I could get into IS or get to KS. So IS, wrote mains in 2001, but I couldn't get through mains. Then I filled the form here. It took pretty long time. Then I had to my job also veterinary as a veterinary assistant surgeon. Then preparing also. Then fortunately in 2004 July I joined state So services. then almost 22 years. Yes. So how has the journey been? Uh, Journey has been, I mean, wonderful journey in terms of when I look back. I mean, I couldn't believe that I have had 22 years of service in Burgess. I mean, Right. it looks as if kal ki baat ho. Uh, a lot of challenges, different assignments, challenges. Every assignment has its own Of challenge. course. So yes, wonderful. I look back. Uh, I can't say that I'm contented, but yes, whatever I was assigned, I tried that I would do justice to that that post or that assignment which have been given by the government, and a very exciting phase, different challenges, and I'm glad that most of the times God has been kind that I've been able to surmount all the say problems or obstacles which came our way in public service. That is quite important. So satisfying. You could reach out to people. You could help a lot of people, and that is what which satisfies me, and I'm very contented by that. So in these 22 years, you must have held what, 7 to 10 posts, Yeah, roughly. right? So which one stands out? Which one is one that you still remember, that you think about? If I ask you, one post that really gave you a lot of satisfaction, that you could do a lot. Yes, there was a one post, and it was I was. This is a program right now. It's running right now. It's National Rural Livelihoods Mission, Okay. and we run it in the name of Umeed, and it was during the earlier tenure of the present Chief Minister Shri Omar Abdullah, and during 2013, the program was launched in Jammu and Kashmir. So I was one of the officers who were chosen to handle Jammu province, and there was Okay. other officer Kashmir province. So basically, this is about creating self-help groups. So we started from scratch.
So it was kind of an NGO kind of a job, which I thoroughly loved. I mean, I could see the countrysides. I could see the real problems which these poor people are facing at the ground level. I mean, sitting here in the big cities, you can write in the file, but you can see yourself what kind of hardships those women are making. And I remember going to Basoli and Chineni. Initially, we had four blocks, earlier blocks. Two were in Jammu, Chineni and Basoli, and two were in Kashmir, Khan Sahib and Lar. So I was the initial officer. I didn't have the office. I was just posted. Okay. So I remember my secretary telling me, "Yeah, we have sent this much money. Please create an account, get the checkbook, look for the office, look for the vehicle, everything." So that was a kind of a, like a sparrow or the bird, it builds up a nest. It was like that for me. And eventually, this was the one part of it. Second was how to mobilize women, how to entice or lure them, or kind of invite them to come into what the architecture of the scheme. That was something very challenging. When we reach out to them, we'd go to villages. The first thing was, पहले भी कोई आता था, पैसे डबल करने के चक्कर में वो भी ग्रुप्स बनाते थे और वो पैसे लूट के चले गए. So that was the initial challenge. So this is what I did. I remember there was a third block we selected, Ghagwal, and my friend, he joined CEO Mata Vaishnavi Shrine Board, Satish, a very good friend of mine, and he was general manager DIC Samba. So I told him, "Yeah, I have to go to social mobilization to our border village in Ghagwal. So I'll come to your office. We'll have tea there, and we'll go साथ में वहाँ से वापस शाम को आएंगे." They said, "Yes, come on." So I went to his office. I sat there, had gulgulas and chai. Then we went to बहुत नीचे गगवाल के नीचे बॉर्डर विलेज में गए. एंड देयर वर सम scores of women waiting for मंडल पीपल ट्री. एक दरीची बिछाई हुई थी और जैसे मेरा मूवीज में दिखाते हैं हाँ गांव में बैठे मेरा वेट कर रहे थे कि कोई सर आ रहे हैं जम्मू से वो. सो मैंने कहा सतीश तुम बैठो मैं स्पीच दे के आता हूँ. सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट व्हाई ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप are important for you, how it can empower you, this is the best thing which can happen to you, and all these kind of how you mobilize them into. It took me 40-45 minutes. So once this kind of questioning and all that was over, then I sat in his car and we were coming back. And Satish has a tear in his eyes because he said, "Sir, आप किधर फंस गए हो?" Literally. But I told you, Satish, मुझे मजा आ रहा है इसमें. साहिल, I must tell you यार, I just एक एग्जांपल देता हूँ कि आप you can then relate to कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ. One UNDP director, because this was a UNDP sponsored project, and वो श्रीनगर विजिट कर रहे थे. तो तब खांडे साहब, उस वक्त खांडे साहब ने मुझे मिशन डायरेक्टर बनाया था, स्टेट का मिशन डायरेक्टर. खांडे साहब चीफ सेक्रेटरी थे. यस, ही वाज चीफ सेक्रेटरी. ने कहा मुफ्ती गवर्नमेंट साहब की गवर्नमेंट बनी थी और हमारे जो सेक्रेटरी थे उनको चार्ज मिला था मिशन डायरेक्टर का. 2015 2016 इट वाज 2015 अर्ली 2015 राइट. और तो वो चले गए थे. तो फिर खाने साहब ने मुझे मिशन डायरेक्टर बना दिया था बिकॉज आई वाज वेरी मच इनटू दिस. तो यूएनडीपी के डायरेक्टर ही सोल्ड मी, यार इनको ले जाओ, टेक देम टू पटन बिकॉज शेयर बेल्ट है उस तरफ, तो अब वहाँ के ले जाओ, वहाँ पे शो देम व्हाट वर्क यू आर डूइंग. सो जैको सिलियस अभी मैं पढ़ रहा था, वो यूक्रेन में अभी यूएनडीपी के डायरेक्टर है. तो साउथ अफ्रीकन है. तो वो आए थे तो मैं उनको लेके गया था. तो वी वर सिटिंग, देयर वर वुमेन सिटिंग अक्रॉस, और ही आस्क्ड मी कि पूछो इनसे व्हाट वाज द प्री उम्मीद पोस्ट उम्मीद, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया, और व्हाई डिड दे चूज टू enter into self-help groups. So women were narrating their own stories to him. And there was one woman who had taken a small 10,000 loan from the groups, and she had started a small vegetable shop. And he asked her ki what change she feels after joining these self-help groups in Umeed. So I asked her कि दीदी आपको क्या
फर्क महसूस हो रहा है कि जब से आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं, उम्मीद से जुड़ी हैं और अपनी दुकान भी खोली है, तो कोई चेंज आपको लगता है? So that lady narrated a very beautiful story. He says कि my husband owns a cycle और आज तक बिफोर उम्मीद उसने मुझे कभी भी साइकिल पे नहीं चढ़ाया था। Okay. और जब से मैं दुकान खोला है एंड माय शॉप इज अर्निंग और आई एम एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड, तो तब से वो मुझे साइकिल पे बिठाता है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ एम्पावरमेंट जो मुझे दिल को छुई कि भाई छोटी सी चीज है साइकिल पे बैठना, वो एक महिला के लिए कितना कितना मायने रखता है कि वो चीज उसके लिए एम्पावरिंग है कि मुझे अपने पति के साथ स्कूल साइकिल पे बैठना है। Okay, so that's interesting. So going back to your childhood and your school education, Bhadarwa and Kishtwar, जैसे आपने बोला, Doda was That's the right, hotbed of terrorism Yes. in the mid 90s, early 90s. So how was it growing up in Bhadarwa, Kishtwar? I've been to Bhadarwa, but I've been there more recently. It's still a beautiful place. I love the mountains and everything. But how is it growing up compared to, let's say, a city like Jammu? Well, I spent my childhood primarily, I mean, since because from first to ninth, my father was a forest officer serving in Kishtwar. I did my schooling from there, Nivara Public School there. So, I mean, if you have been to Kishtwar, you see there's a huge playground, Chogan, we call that Chogan. So, चाइल्डहुड वहीं पे स्पेंड रहा, क्रिकेट खेलते थे, साइकिल चलाते थे और बहुत बड़ा ग्राउंड, एक थिएटर होता था हमारे टाइम में वहाँ पे। Okay. वो जैसे मिल्टन से 90s के बाद बंद हो गया और अभी तक बंद है। Right. तो वो एक वहाँ पे एंटरटेनमेंट रहता था कि हर संडे को मूवी देखने जाते थे और दिन भर उस थिएटर से गाने चलते थे। आई रिमेम्बर प्रेम रोग के गाने पूरा किश्तवाड़ को सुनाई देता था। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। सो सिंपल लाइफ, मतलब थिएटर था, क्रिकेट था, स्कूल था, घर स्कूल, उसी तरीके से छोटी छोटी ज़रूरतें थी पूरी हो जाती थी। मतलब एक जो चाइल्डहुड हमारा रहा है ना, वो आई डोंट नो, आप तो शहर में पले बड़े, बट छोटे शहरों की अपनी एक सेल्फ सस्टेनिंग एक मोड पे वो चलता था। ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं होती थी, उतना मिलता भी नहीं था, लेकिन ज़रूरतें भी बड़ी सीमित, लिमिटेड थी। आई रिमेम्बर हमारे टाइम में चिनार में कभी अभी केसेस, सिंस आई एम डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, आई हैपेंड टू मीट देम, तो हमारे ज़माने में चिनार बिस्किट होता था, हाँ, बिल्कुल फिर होता उनका था। कोकोनट बिस्किट, दैट वाज लाइक हमारे लिए बड़ा वो पार्टी टाइम होता था। या कभी फर्स्ट या क्लास में आगे, बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडीज, तो फादर से पैसे लेके समोसे और चने खाते थे। सो दैट वाज 50 पैसे के चूइंग गम्स आते थे, बस उतनी लाइफ थी हमारी, बड़े खुश थे। और नाउ थिंग्स आज की डेट में चाइल्डहुड इज It's very कॉम्प्लिकेटेड, different, लॉट ऑफ yes. थिंग्स, लॉट ऑफ lot of distractions. distractions, but हमारे टाइम में it was simple. And but when I came to Jammu, I was already in class 12. Okay. But it was something new. I remember KC नया नया खुला हुआ था, तो बर्गर तो पहली बार हमने यहाँ आके खाया और महंगा भी होता था, पैसे भी KC Plaza. Yes. KC Plaza. So it started from that with that KC residency. तो उसके बाद तो Things change. mushroomed all that culture, restaurant culture, and this fast food culture. It's spread now. Things But how was the experience of coming from a place like a small town like Kishtwar or Bhadarwa, और फिर जम्मू में आके college and living in Jammu? Yeah, it was मुझे लगता है कि मेरे लिए उतना चैलेंज था पर्सनली, मैं कहूँगा, बट हमारी जगह से जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस का ना, व्हाट दे लैक इज कॉन्फिडेंस। Right. शहर में बच्चे हैं, हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी, बट सिंस मतलब God has been kind, I was a very good debater. Even I studied there 9th 10th, I represented my state in Kolkata and New Delhi from Kishtwar. Okay. So diets used to be very vibrant. Our diet Kishtwar was to be very vibrant at that time. So 2 consecutive years I was a state, I won at state level. Then 9th I went to Kolkata. My father and my teacher were accompanying me. Then second time in Delhi. So I didn't face it. I was confident
आई कुड स्पीक, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे, तो शहर का बच्चा कितने डराएगा, राइट. तो मुझे उतना नहीं आया. बट यस, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम आवर साइड. और आज की डेट में एक लेवल फील्ड यार, देखो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इंटरनेट है, सब कुछ है. तो अब बच्चा अगर वो छोटे शहर से भी बड़े शहर में आता है तो वो कहीं ना कहीं मैच कर ही लेता है, बिकॉज इंटरनेट इधर भी है उधर भी है. तो हमारे टाइम में गैप था. अभी तो मतलब देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो दे नो व्हाट्स हैपनिंग, दे वेरी अवेयर. यस. पहले वो जो सुनते थे वही होता था, यू नेवर न्यू एक्चुअली व्हाट द रियलिटी इज. एंड वन थिंग आई मिस फ्रॉम माय those school और कॉलेज डेज, मैटाडोर का कल्चर. मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैटाडोर पे कब चढ़ा था. Okay. और उसी मैटाडोर में चढ़ना, परेड से जैसे गए, परेड से जानीपुर रहते थे, और उसी पे चढ़ना जो सबसे बेहतरीन गाना लगा. तो आई रिमेम्बर हमारे टाइम में वो दिलवाले या वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म थी, वो गाने चलते थे, तो बस वो देखना कि गाना लगा तो फिर चढ़ना. और वो मजा आता था कि जब वो खिड़की से वो लटकता था बाहर, कंडक्टर के साथ दोस्ती करके वो झूलना. सो वेरी सिंपल टाइम्स, और छोटी छोटी चीजों में हम मजा ढूंढते थे. राइट. तो वो इनिशियली वो दैट वाज गुड थिंग, बट अब तो मुद्दत ही हो गई वो चढ़े हुए. आई कैन फील नाउ. तो आई रिमेम्बर एक बार हम बात कर रहे थे, आप यू सेड यू डूइंग सम लेक्चर्स नाउ ऑन जियोलॉजी. अच्छा, या पढ़ाते थे. यस यस. नहीं, अभी भी आप कहीं स्पीकिंग एंगेजमेंट्स पे? हाँ, इनिशियली क्या हुआ कि जब मैं केस में पास हो गया तो बेसिकली देयर इज अ टीचर इन मी. आई लाइक टू टीच. तो यहाँ पे एसआर कॉलेज होता था, प्रवीण शर्मा जी का, ही वाज अ गुड फ्रेंड. तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तैयारी करते होते थे. तो उनका एक ज्योग्राफी का, और अभी मैंने उस बैच में मैंने भी एग्जाम देना था, तो 2004 से पहले वाला, 2003 के आसपास. तो बोला कि एक लड़का अच्छा लाइब्रेरी में, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, व्हाई डोंट यू ट्राई हिम. तो देन उन्होंने बुलाया एंड आई डिलीवर्ड कपल ऑफ लेक्चर्स. तो सो वहां से फिर वो पढ़ाने वाला ज्योग्राफी, देन कुछ बैचेस को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई, क्योंकि मेरे दोनों मेरे ऑप्शनल्स थे. तो देन टीचिंग भी 3-4 साल 5 साल टीचिंग भी करते रहे. तो आई एंजॉय दैट. तो अभी चूंकि टाइम नहीं है. बट अभी भी कुछ स्पीकिंग एंगेजमेंट पे आप? हाँ, कभी जैसे लवली यूनिवर्सिटी जिनको बुला लेता है, तो आई लव दैट, बिकॉज वन कि एक तो टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है. तो अगर इस तरह के आपको मौका मिलता है कहीं बोलने का, ये बजट पे बोलना है, बिकॉज 2-3 साल से मैं आई एम बजट के बाद जा ही रहा हूँ, कभी इन वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी. तो क्या उससे क्या रहता है कि आप अपने आप को एंगेज करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, और बच्चों के साथ एंगेज करना है, तो दैट इंटरेस्ट मी ऑल्सो. तो वो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट भी करती हैं, और दोनों चीज़ें हो जाती है. एक तो यू एड ऑन टू योर नॉलेज एंड you speak out and reach out to the students and engage with them. Then 2004 you joined KS, and your better half also, she's 2004 Yes. of, right? So how did that happen? How did you meet? And Well, it was an arranged marriage, but Okay. I did see her earlier, because सब लोग हम लोग लाइब्रेरी में तैयारी करते होते थे, वो भी करती थी वहाँ पे. and one of our common friends जो वहीं रहता है, राजपूत. So he played the carpet and Okay. families, और by that time दोनों का केस हो गया था. okay. अच्छा, शुरू पहले हुआ था, then No. हाँ, केस के बाद ही. KS के बाद. तो आई वाज ऑलरेडी हाउ मच 27. तो मेरे पे तो नौकरी तो पहले से थी, एज आई वाज वेटरी डॉक्टर आल्सो. तो देन ही प्लेड carpet. His mother spoke to मेरी mother-in-law, then they spoke to our parents. So somehow बात हो गई. That's nice. So you like to read also? Yes, I do. So what kind of books do you like to read? I'm more of a non-fiction person. Okay. Fiction ज़्यादा भाता भी नहीं, बट मोर ऑफ हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, इस तरह की किताबें. और आई लव दैट. जैसे काफ़ी सारे आजकल किंग ऑफ किंग्स पढ़ रहा हूँ मैं. इट्स अबाउट 1979 में जब शाह का रूल ख़त्म होता है, खोमैनी ईरान. आ जाता है ईरान का.
इस तरह की बुक्स हैं, या आई फॉरगॉट द नेम ऑफ वन बुक, एप्पल पे है, मैं उसको टाइटल भूल गया था, कि किस तरह से एप्पल जो फॉक्सकॉन किस तरह से एक फॉक्सकॉन पे डिपेंडेंसी था चाइना में, देन मैक्सिको, वियतनाम, अब जैसे फॉक्सकॉन इंडिया में भी बना रहा है, तो एप्पल पे किताब है, तो मल्टीपल बुक्स, बट बड़ा लंबा टाइम लग जाता है आजकल किताबें खत्म करने में। और, वो ना फोन ने अटेंशन स्पेन जो है ना वो सबका कम कर दिया है, राइट। तो तो तभी यस मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ ज़्यादा सुबह वॉक करते हुए। यस दैट इज अगेन, इट हेल्प्स। सो ये थोड़ा सा फर्क आ गया, बट यस आई डू, और खरीदना बड़ा पसंद है, अगर देखेंगे तो पढ़े ना पढ़े वो खुशबू जो किताब की, और जो एक यू नो व्हेन अमेज़न से किताब आती है, और मेरे काफी दोस्त जो मुझे जानते भी हैं, दे वुड सेंड बुक्स, आई हैव टू जस्ट स्क्रीनशॉट भेज देना, तो 2-3 दिन में आ जाती है, तो वो शेल्फ पे है ना, या उसको पकड़ लेना हाथ में, वो वो बड़ा एक सुकून वो मुझे तो मिलता है, है उसमें। बुक पकड़ के और बुक पढ़ने हाँ में जो हाँ मजा आता है वो हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो एक बड़ा मुझे इट्स काइंड ऑफ अ कैथारसिस, मतलब क्या मैं आई कांट इनएक्सप्लिकेबल एक्सपीरियंस। या सो इट हैज अ वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस। आपने बुक यस पकड़ी है तो देन यूर अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, मतलब वो यस, अपनी एक दुनिया में एक वो ऑफ कोर्स। वो इंटरेस्ट तो, नो नो, आई आल्सो कीप बाइंग बुक्स। या मेरे भी अगर आप ऑफिस में भी हाँ, देखोगे आई वाज लुकिंग अराउंड योर शेल्व्स, तो लॉट ऑफ मेरी बुक्स। बुक्स ही भरी हुई हैं। पढ़ी मैंने आधी भी नहीं होंगी, बट मैं देख रहा था, जैसे एक बुक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके ऑफिस में थी, फिल नाइट की डॉग शू, दैट वाज अबाउट नाइकी, किस तरह से वो, उस पे मूवी भी बनी है जिसमें मैट डेमन था, मतलब इंटरेस्टिंग बुक, तो इस तरह की बुक्स, मतलब फिक्शन बड़ा कम, बट जैसे हिस्ट्री हो गया तो वन शुड रीड इट, जैसे आपने अभी हम जिक्र कर रहे थे रिच डैड पुअर डैड, किसने खरीद, सुना सबने, 100%, खरीदी 80% ने, पढ़ी पाँच बड़े परसेंट पांच में, फिल्म तो वो जो 5% में कहीं आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। तो बट लेकिन मुझे लगता है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में पढ़ाई का कल्चर परसिस्ट करता है, वो सिविलाइजेशनली बहुत तरक्की करते हैं, उनका आर्ट कल्चर लैंग्वेज उसमें तरक्की करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हमको एंगेज करना चाहिए, बिकॉज बच्चे, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट फेसबुक, वो एक इमोजीज के चक्कर में वो पूरा एब्सोल्युटली। अटेंशन स्पैन बहुत कम मैं तो अपने स्कूल में बच्चों को, टीचर्स को, सबको इनकरेज करता हूँ बुक्स पढ़ने है। यस दे मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। की। सो एनी बुक्स दैट हैव हैड a big impact on your life that you read and uh, they touched you or they had a big impact on your life? ऐसा तो नहीं कहूँगा, हर एवरी बुक टीचेज यू वन थिंग और द अदर, बट गांधी का जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, अगर आप उसको कोई पढ़ता है और समझता है कि गांधी की फिलोसफी क्या थी, या अभी इट्स वेरी इजी टू से कि गांधी का जो सत्याग्रह है, यू नो, यंगस्टर वुड मॉक, बट वो रेजिस्टेंस, वो ब्रेवेस्ट आदमी इन द वर्ल्ड ही, जो सबसे ब्रेव हो, वो ही इस तरह का रेजिस्टेंस कर सकता है कि एक सीधे से एक वाइट कपड़े में पूरा जीवन बिता रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह की किताबें, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, बट ये स्ट्राइक किया मेरे को माइंड में, बट इस तरह की किताबें अगर हम पढ़े, या मुझे एक एलिफ शफाक, एक टर्को कैनेडियन, तो उनकी एक बुक थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें एक पैरेलल चला था, रूमी और उनके जो गुरु थे, माय ब्रेन फॉग, देन एक स्टोरी पैरेलल चल रही थी, तो उन दोनों के पैरेलल में, या चाणक्य चैंट एक अरविंद सांघी की Right. थी, जिसमें उसने पूरा की एक स्टोरी, दो स्टोरीज को व्यू कर रहा था, तो इस तरह की स्टोरीज लड़के एक अच्छा भी लगता है, और एक कहीं ना कहीं को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हमको मिल जाता है, Right. जैसे रूमी के बारे में समझना, या रूमी के बारे में जानना, और किस तरह से उसका जो अपना गुरु है, आई फॉरगॉट द नेम, उनके साथ उनका संवाद, और किस तरह से गॉड को डिफाइन करना, लव को डिफाइन करना, मदर को डिफाइन करना, या आपकी, यस आई रिमेम्बर नो, खलील जिब्रान की द प्रॉफिट थी, जिसमें उसने हर उसको टच करा हुआ, एंड दीज आर द सम बुक विच इंटरेस्ट, बट अभी मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, बट यस एवरी एवरी बुक, एवरी बुक हैज अ मैसेज, जो उसमें इंग्रेंड होता है, वो फिर एज अ रीडर आपको उससे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको इम्बाइब करना है, सो आई थिंक
any book which interests somebody. जैसे हम जनरली मोटिवेशनल बुक कहें तो हम कहते हैं द अल्केमिस्ट Yeah. है ना, तो Right. अगर उस तरह की किताबें अगर वो कहें तो ये द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, Robin तो Sharma. काफी ऐसी इस तरह की जो अगर कोई आदमी उससे कुछ लेना चाहे तो वो ले सकता है. So we'll briefly touch upon your professional career, right? अभी आप डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू, and 2019 के बाद there was a lot of interest in Jammu Kashmir in terms of industries. So what has happened, what has not happened, we won't talk about this, but from your perspective, right, where do you see Jammu 10 years from now? See, you'll have naysayers also, you'll have people who are optimistic also. Most of the people you'll talk, the common buzz is that because of the trains and because of the different things, train going to Kashmir, Jammu Pathankot ban jayega. Personally, I feel we could keep on discussing that also. Yeah. कोई भी शहर जो है अगर वो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको अपने आप को बदलता नहीं है, समय के जरूरत के हिसाब से, वो शहर इतिहास का हिस्सा बन जाता है. तो जम्मू को भी उसी तरीके से अपने आप को इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर थिंग्स, इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, टू द चेंजिंग टाइम्स. क्योंकि आज ट्रेन है, कल को ओवर स्पीड अप ट्रेन हो जाएगी या कुछ और आ जाएगा. तो अगर हम चेंज नहीं होते और अपने आप को उस तरह से ढालते नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी कोई भी तो मुझे लगता है कि फिर शहर, कोई भी शहर लंबा सस्टेन नहीं कर पाता. तो वो तो है, I mean, say you can't stop an idea that whose time has come, yes. right? तो ये होना था, eventually तो होना ही था. You couldn't have just kept कि जम्मू सारे आएंगे, फिर जम्मू से ही कटरा जाएंगे, जम्मू से कश्मीर जाएंगे. But again, Jammu has not done what it should have, Yes. right? I personally feel that. So what does Jammu need to do in the next 10 years to become or to stay relevant? Look, government has recently, under ease of doing business, we have passed a private universities bill. That was the necessity. At least we can invite investment in the education sector also. A lot of reforms the government is doing with respect to ease of doing business, be it in private schools, that I mean, government as a regulator has a limited role. Right. Let's deregulate the businesses. Let the people invest. You are an investor in a school. Let you invest it and bring out the results. Let's not interfere. See, the problem with the regulator is that regulator intends to or tries to poke its nose in every aspect of the business, which in a way impedes or hampers the business. So let's not do that. So we are deregulating a lot of things. We are decriminalizing a lot of things in private schools, also private education institutions. We have come up the private universities bill, and in even businesses also we are looking for that. Besides that, besides things coming from the government, as a society, they have to come up with certain out of box solutions. That what is the business which is going to thrive, which is the business which is going to be relevant in the coming 10 years. Right. ये तो समाज जब तक नहीं आएगा, आपसे बात नहीं आएगी. मैं अभी भी देखता हूँ कुछ बच्चों के यहाँ पे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं. So yes, IT skill is the end thing. Let's invest in that. Private educational higher education institutions को अगर हम यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम देते हैं जहाँ पे वो फेयरलेसली इन्वेस्ट कर सकते हो और स्टेबिलिटी दे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से देहरादून अगर आप देखें या पुणे देख लें, अब देखो जैसे इलाहाबाद एक समय में होता था, तो एक जो यूपीएससी के बच्चे जो निकलते हैं इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, दिल्ली हब बन गया. वैसे ही सोसाइटी जब तक नहीं, सरकार का एक अपना एक नजरिया होता है देखने का, पीरियड ऑफ टाइम जगह, जब तक सोसाइटी एज ए सिविल सोसाइटी हम नहीं कुछ लेके आएंगे आउट ऑफ बॉक्स, तो मुझे लगता है फिर शहर थ्राइव नहीं करता. तो उसको एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए दोनों तरफ से, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि काफी सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखेंगे एक महीने के अंदर द रेडिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट वी वुड बी क्रिएटिंग इन J&K and ease of doing business. You'll see that very radical. आप खुद हैरान हो जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से
आ रही है कि लोग आए और इन्वेस्ट करें, हम भी चाहते हैं। और जिस तरह से अभी देखो जैसे न्यू सेंट्रल सेक्टर्स के में कितना इन्वेस्टमेंट आया, अगर आप कठुआ का पूरा बेल्ट देखें तो people are coming with 500 600,000 crores of investment. There are certain units who have invested 12 1300 crores in their units. So units are coming up. We may have naysayers की बाहर अंदर नहीं, इन्वेस्टमेंट जब तक होगा और जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा चीजें मूव करेंगी। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हाईवेज अच्छी बन रही हैं, पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से पैसा खर्च कर रहा है, या प्राइवेट एंटरप्राइज से इन्वेस्ट हो रहा है, तो दोनों सूरतों में अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है तो मुझे लगता है कि इट विल बी बूम फॉर जम्मू। बट हैविंग सेड दैट, बिजनेस को थ्राइव करवाना है तो अब ये नहीं हमने कहना है कि नहीं आप तो दिल्ली से माल ले रहे हैं, आप जम्मू स्किप हो गए, तो व्हाट कैन वी ऑफर others better thing So to we go have to for be stick that. competitive. Yes, Yes, we we can't. have to be competitive. So it has to come from us. We have to, शहर है अपना, अगर इसको सस्टेनेबल वे में अगर इसके इकोनॉमिक इंजन को चलाए रखना है तो सरकार की उतनी जिम्मेदारी है, और सिविल सोसाइटी और ट्रेडिंग कम्युनिटी की भी उतनी, या बिजनेस कम्युनिटी की भी उतनी जिम्मेदारी है। तो समवेयर वी हैव टू कन्वर्ज, वी हैव टू सिनर्जाइज सो दैट the momentum keeps running. Yeah, we can't create trade barriers to make our businesses successful. It has to self-sustain, and we need to be competitive. वो तो है. Wherever government thinks we need to help or give a holding hand, government is ready to do that, but at the end of the day it has to come from civil society or the traders or the businessmen. Only that Jammu can survive. Otherwise, अब आप देखिए, अर्लियर हम खुद से जाते थे, खुद इज अ घोस्ट टाउन नाउ, Right. राइट? सारा का सारा आप देखो, सारी दुकानें, और जो बटोत यूज टू बी, यहाँ से जाते थे बटोत में, रुके लंच होता था, गाड़ियां वहां रुकती थी, बिल्कुल. वहां से आते थे, मिडिल पॉइंट था। बटोत में कोई गाड़ी नहीं होती, 4 बजे के बाद तो वहां मार्केट में सुनसान मार्केट दिखती है। जब हम ट्रेवल करते थे जम्मू से भदरवा या किश्तवाड़ से जम्मू, जब वापसी पे, तो Of course, ये vibrant towns अब थे. नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब जैसे रिंग रोड खुल गया तो धीरे धीरे आपका शहर वहां स्प्रेड करेगा, जो यहाँ की मार्केट है तो जाहिर सी बात है खत्म होगी। तो वही Cycle है। we need to evolve. Yes, The cities have to evolve. सिटी को इवॉल्व करना है। तो इसी को आगे जम्मू कश्मीर जनरली people have people look for government jobs. Right? I mean everybody you talk to, वो पहली preference क्या है? Government job की, right? So that should have changed by now, but somehow it is still it hasn't changed as much as it should have. So how do you view that, and how do we change that thing? Because people can't be dependent on the government. The government plays a facilitating role, right? That's how what the government is supposed to do. But यहाँ पे, because the government size is big, so हर एक को है कि मेरे को government job चाहिए. So how do you change that, and how do you view that? Since you're in government yourself. Yes, it is a problem. अगर आप देखें nationally देखें तो population to employment, government employment ratio जो we are one of the highest. Yeah. Indian is one of the highest in the country. आने वाले समय में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर सरकार का बढ़ता जाएगा, उसके बाद पेंशन्स भी देनी है, तो ये नहीं कि अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे। सो गवर्नमेंट हैज टू लिमिट सरकारी नौकरी कहाँ तक देगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक माइंडसेट चेंज करना है। अभी भी देखिए, इंडस्ट्री में भी हूँ, मेरे को काफ़ी सिफारिशें आती हैं दोस्तों की, हायर ऐप से, कि ये बच्चा है हमारे, उसको फैक्ट्री में लगा दो। मैं सच में कहूँ, ओनली 20% या 15% जो टिकते हैं, 80% वापस चले जाते हैं। सो आने वाले समय में जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो अगर आप कन्विक्शन से नहीं तो आपको कंपल्शन से इस तरह की नौकरियां करनी पड़ेंगी। अगर अभी भी देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा, अगर उसके पास स्किल है, चाहे मेसनरी कर रहा है, प्लम्बिंग कर रहा है, सो यू कैन अर्न ₹1,00,000 अ मंथ ऑल्सो। बट उस तरफ जाना है, वो माइंडसेट को चेंज करना है कि भाई मैं एटलीस्ट सैनिटरी या प्लम्बिंग का काम करूँ या इलेक्ट्रिशियन बनूँ। आप देखो, मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर सारे बाहर के, राइट? सो वी कांट से कि भाई नहीं है। एक सेट को वहां से भी आपको जाना है तो आप उस पर भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जगह वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं सरकारी मिलेगी, तो मैं वो डेली वेजर के ही वो
पीएचई पीडी में लगने को राजी है, हाँ, लेकिन बस इस तरह का काम नहीं काम नहीं करेंगे जहाँ पे 6,000 5,000 6,000 का वो भी मिलती है नहीं मिलती है, इस आस में यार कभी ना कभी तो हाँ, मिलेगी। तो वैसा नहीं है, तो मुझे लगता है माइंडसेट हमको चेंज करने की जरूरत है। और एक और, हमारे बच्चे अभी भी, आप शायद थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगे हैं। एक और चीज, जब ऑलरेडी उम्मीद में था तो हम एक प्रोग्राम उसमें हिमायत का करते थे, जिसमें 12वीं तक के बच्चे, या उड़ान था, आपको याद हो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे एक कमेटी बनी थी, डॉक्टर रंगराजन कमेटी, उसकी जो सिफारिशें थी उस पे दो स्कीम्स आई थी, हिमायत और उड़ान। उड़ान। उड़ान was for graduates and above, and हिमायत was for 10 हिमायत 12 वाज 10 ट्रेनिंग 12। ट्रेनिंग राइट, हाँ, स्किल डेवलपमेंट। दोनों अच्छा, दोनों दोनों का स्किल ट्रेनिंग भी डेवलपमेंट। था। उड़ान में इतना फर्क था कि किसी कंपनी में, जैसे अपोलो में आप लग गए, अपोलो टायर्स की कंपनी में, वहां अप्रेंटिसशिप 6 महीने की करेंगे, और अगर आप लगता है कि वहां पे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सर्टिफिकेट करके आप आ जाते हैं, किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। हिमायत में था ट्रेनिंग भी देंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे, उनको ट्रैक भी करेंगे आपका कैसा चल रहा है। एट्रिशन काफी दोनों जगह पे हमने देखा कि बच्चे वापस आ रहे हैं। जो बच्चे थे आज वो हायर अप, दो दो तीन प्रमोशन ले चुके हैं, जो टिक गए। जो टिक गए। बाकी मैक्सिमम दे वुड कम बैक। तो अभी लॉट ऑफ आर्टिकल्स, आई मीन इफ यू रीड अबाउट एआई, तो a lot of them say that the safest jobs today are probably जो आप कह रहे हो लोग करना नहीं चाहते, Yes. masonry, plumbing, electrician, क्योंकि बाकी a lot of jobs AI will take away. I mean that's what the perception is. So yes, but then how do you change the mindset कि ये jobs are not beneath you, these are all practical jobs, these are all jobs. So dignity of labor बढ़ाने की बात है eventually, right? So how does that happen? How, I mean, as a society, as government, how do you effect that change? जो बात आपने की, मुझे युवल नोआ हरारी का एक इंटरव्यू था, उसमें ये बात की थी जो आपने भी कही, कि आज की डेट में एआई विल नॉट टेक ओवर जो स्किल सेट आपके पास है। मतलब आप प्लम्बिंग अच्छी करते हैं, वो एआई नहीं ले सकता, राइट? या आपके पास कुछ, आप डॉक्टर हैं, कुछ हद तक सर्जरी वो ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसा आपके पास स्किल है जो अभी तक वहाँ नहीं कर सकता, तो वो नहीं ले सकता। या आप कारपेंटर हैं, उस तरह का हुनर अभी तक आप बचे रहोगे जो एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। बाकी आपका क्लरिकल वर्क है, आपका वो सब एआई टेक ओवर कर लेगा। ऑफिस वर्क आपका टेक ओवर करेगा, जरूरत ही नहीं है उसको क्लर्क्स की आने वाले टाइम में। या इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखिए, जिस तरह की प्रिसीजन इंजीनियरिंग हो रही है, तो कई जगह पे वो आपका स्किल सेट है जो आप एडिशन अपने ऊपर कर सकते हैं। कितनी फैक्ट्रीज हैं, नई फैक्ट्रीज कोरिया में, ताइवान वगैरह, जहाँ पे मतलब जरूरत है ही नहीं, बनते हैं ही नहीं, वर्कर्स है ही नहीं। हाँ, इवन अभी भी यहाँ पे भी, आप कठुआ में कुछ इंडस्ट्रीज हम गए थे, जैसे एक आइसक्रीम की फैक्ट्री, तो वहाँ हाथ यूज ही नहीं होता है, सिर्फ एक बंदा प्रोडक्शन लाइन में होता है जो वो चेक कर रहा है। अदरवाइज रॉ मटेरियल गया और फिनिश प्रोडक्ट एक प्रोडक्शन लाइन के एंड पे वो निकलता है, वो पैकिंग वैकिंग के लिए लड़के यूज होता है। तो लेबर हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। एक मैं आपको बता रहा था, आई डिड अ बिजनेस कोर्स अभी पीछे, तो दैट वाज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो वो हमारे को एआई एजेंट्स के बारे में बता रहे थे। एंड जैसे हमारे पास टेलीकॉलिंग टीम होती है, यू नो, द कॉल कस्टमर्स, क्वालिफाई होती है लीड, उसके बाद सेल्स टीम के पास जाती है। तो उन्होंने हमारे को एक कॉन्वर्सेशन सुनाई। He said one is a real person, one is an AI agent. 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी। हमारे में से एक भी बंदा बता नहीं पाया कि कौन सा एआई एजेंट है, कौन सा ह्यूमन है। सो ऑल दीज एआई एजेंट्स आर इम्प्रूविंग, इवॉल्विंग सो फास्ट यस यस। कि लॉट ऑफ दीज, ये जो आप कह रहे थे क्लरिकल जॉब्स हैं, जो जहाँ पे स्किल सेट कोई नहीं चाहिए स्पेसिफिक, दे विल बी टेकन ओवर बाय एआई। सो देन दैट बेग्स द क्वेश्चन अगेन, मतलब उसमें फिर प्रेशर किसके ऊपर? प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा वापस, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो इवेंचुअली हर देश को नई चैलेंजेस के लिए अपनी वर्कफोर्स को तैयार करना पड़ेगा इस तरह से। मतलब इंडिया कह लो, चाहे जितने भी करे, चाइना तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कोई भी मुल्क अगर उस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, उसको अपने वर्कफोर्स को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि जो फ्यूचर की चैलेंजेस है उसके लिए अभी से वो अपनी जो प्रोडक्टिव लेबर है, वर्कफोर्स है, उसको तैयार कर सकते हो। उसमें वी हैव टू वर्क ऑन इट। अदर नहीं कर सकते तो बहुत पीछे रह जाएंगे और
this technology would take over. So we are both parents, and you love to teach also. I love to talk to students also. अभी भी मैं जब भी काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ तो पेरेंट्स का प्रेशर है या मेडिकल या इंजीनियरिंग. अभी भी जम्मू में इन दो के अलावा कुछ सोचता नहीं है इंसान. तो पहली चीज़, आप अपने बच्चों को व्हाट डू यू टेल देम, व्हाट शुड दे लुक एट. आई एम श्योर दे आस्क यू फॉर एडवाइस, राइट? डिस्कस. I mean, your son, I've talked a little less. आपकी daughter के साथ तो she is, and I think you've encouraged her कि whatever you're good at, whatever. So, what advice you give your kids? देखो, एज अ पेरेंट तो यार इनसिक्योरिटी तो रहती है. आई ऑल्सो वांट कि बच्चे सेटल डाउन जल्दी से हो जाए, दे स्टार्ट अर्निंग और अपने पैरों पे खड़े हो जाए. इट्स फेयर, Natural. नॉर्मल है, और हर पेरेंट को ये थोड़ा सा It's a natural thing. Yeah. But at that just my daughter, I tell her कि whatever, both my kids also, he's appearing for NEET, तो मैं उसको भी कहता हूँ out of volition. I may not pushed him कि भाई, otherwise उसको देखूँ, he's very good at general studies, he's well aware, politics समझता है, economy समझता है. So I tell them, whatever you do, be the best in that. Yes. Whatever, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी आप करो अच्छे करो, उसमें आपको सेकंड नहीं होना है, बिकॉज इस कंपटीशन में सेकंड वो नहीं छोड़ते. बट उसके साथ साथ इतना भी प्रेशर मत लो कि बस यही रह गया और कुछ नहीं है भाई. बहुत कुछ है करना. सेकंड आके भी खुश हो सकते हो. यू पुश योरसेल्फ टू अ लिमिट, नॉट, बट एक उसकी सीमा है, उसके बियॉन्ड नहीं आप जा सकते कि इतना प्रेशर ले लो कि भाई आप सब कुछ भूल जाओ और do your best. Yes. मतलब अपने एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें चलेगा. सो आजकल यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक इट्स एट टाइम्स आई सी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर पेरेंट्स आल्सो कि बच्चा 98-99% इस पे रहता है. एक तरह से क्या होता है, मिडिल क्लास है के पास एक ही ऑप्शन है, वो नौकरी का, जॉब, सिक्योरिटी, और वो भी जल्दी से हो जाए सिक्योर, बच्चा हो जाए. मैं जब ये था कि मैं ग्रेजुएशन में जाता या सीधा नहीं, पहले ये कर लो, नौकरी लग जाएगी, फिर जो मर्जी करो. इसको तो एक टेंडेंसी एक मिडिल क्लास में ऐसी रहती है. तो आज भी ऐसी, तो पेरेंट्स का ये मेरे हिसाब से ठीक है. यू हैव टू एनकरेज योर चाइल्ड, योर वर्ड, यू हैव टू एडवाइस हिम, बट एट द उसकी डोंट पुश हिम बियॉन्ड द लिमिट्स. क्योंकि उस टाइम पे जब मैं और आप स्कूल में, कॉलेज में होंगे, उस टाइम में और आज में बहुत फर्क है करियर ऑप्शंस में. यस. तब एसेंशियली था ही यहाँ उस टाइम में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स वाज वेरी पॉपुलर आल्सो, बट यहाँ डॉक्टर इंजीनियर, मतलब उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा जॉब नहीं था जो सिक्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा. बट आज की डेट में तो देयर सो मेनी ऑप्शंस. यस, मतलब कि तो ऐसे बच्चे जो अच्छे इंटरेस्टिंग, वो तो यूट्यूब पे करके ही इतना पैसा कमा रहे हैं. तो एक ऑप्शन ये भी है. तो इस तरह से कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कोई बच्चे स्टार्टअप से एक आइडिया क्लिक कर जाता है तो देन दे परस्यू इट. जनरली क्या होता है, मुझे लगता है जो टेंडेंसी मिडिल क्लास में रहती है ना, हमको रिस्क टेकिंग, हम बचपन से ही सेफ खेलते हैं, सेफ. तो वो जो रिस्क टेकिंग जो एक कैपेबिलिटीज होती है ना, वो पनपती नहीं. कभी हमने रिस्क लिया ही नहीं लाइफ में भी, मतलब राइट फ्रॉम स्कूल टाइम्स अभी तक रिस्क लिया ही नहीं कभी. तो जब बड़े होते हैं रिस्क लेने से डरते हैं, अगर मैं फेल हो गया फिर क्या हो गया. तो मैं जब तक रिस्क नहीं लूंगा मैं तरक्की कर ही नहीं सकता. तो हम उसी में खुश रह जाते हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. बट आप एक लेवल तक आ गए, ठीक है. सो अब आपके बच्चों को एक वो सिक्योरिटी है कि अगर मैं 2 साल बाद भी कमाना शुरू करूंगा, इट इज स्टिल ओके. Yes. राइट. So then do you encourage your kids to do more, to try something different? Yes. Or would you want them to play it safe कि नहीं, ये मेरे को ये करना है कि मेरे को जॉब तो इस सेफ्टी चाहिए मेरे को. नहीं, मतलब देखो, ये लग्जरी एज अ पेरेंट मुझ में और मेरी वाइफ में है. स्पाउस दोनों वर्किंग है, डिसेंट सैलरीज हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं. और वैसा पुश नहीं करेंगे, बट तुमको कल से कमाना शुरू करना है, फेंड फॉर योरसेल्फ, वैसा नहीं है. सो वी हैव दैट लग्जरी. बट इनवेरिएबली जहाँ पे वन वर्किंग है, नहीं हो रहा, तो जैसे जैसे एक साल निकलता जाता है, तो इवन बच्चे में भी टेंशन हो जाता है भाई, कि मतलब कि यार मैं 25 को हो गया हूँ, तो आई एम नॉट अर्निंग, तो मैं कैसे
तो अब आपके दोनों बच्चे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करते हो कि करियर ऑप्शन? आई नो योर डॉटर लव्स मास मीडिया एंड एवरीथिंग. It is, I mean, if she wants to become a journalist, it's a very difficult profession, Yes. right? But would you encourage her to do it if she's very good at it, or would you want her to take a safer job? No. Right now, you have interacted with her also. I don't tell her कि यार इसमें जाओ वो करो. मेरा यही रहता है कि you have to excel in whatever you do. मेरा वो है. तो ऐसा नहीं है कि तुमको बस जल्दी से नौकरी में घुसना है. मैं तो ये कहता हूँ you should try for Ivy Leagues, go explore your world, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाओ. तो उस तरह के I tend to encourage her. और मुझे लगता है कि ये luxury as a parent, I can stretch myself and try to give her वेरी गुड एजुकेशन. रिसोर्सेज भी हैं, थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं टू गिव हर एजुकेशन, टू गिव माई चाइल्ड एजुकेशन. बट उस तरह का मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि हम दोनों अच्छी उस पे हैं और सैलरीज अच्छी हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, इजियर. बट नॉर्मली अगर आप पूरा मिडिल क्लास का सिनेरियो देखें तो इट्स नॉट दैट इजी. Because I tell my kids, of course, I've done business all my life, so I probably have a different perspective. Ki if you're the best at something, money will never be a problem. Yes. So somehow, जब बच्चे किसी एक चीज में बहुत अच्छे भी होते हैं, they're very very talented, but then of course a lot of parents are risk averse. तो somehow अब आज की डेट में भी उन बच्चों को वो encouragement नहीं मिलती, opportunity नहीं मिलती कि वो उसको explore कर सकें. So as a society, maybe as a government, or so how do you start changing that mindset a little bit? देखो ये एक तो घर, ये माइंडसेट चेंज करना, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, देन स्कूल्स, देन सोसाइटी. अगर ये इनिशिएटिव घर से नहीं निकलता तो सोसाइटी कुछ भी इम्प्लाई करे या कुछ भी थोपे वो एक्सेप्ट नहीं होगा. सो व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउस होल्ड, देन इट कुड बी लाइक रीइंफोर्स्ड एट द स्कूल लेवल. और जब स्कूल लेवल पे रीइंफोर्स होगा, देन सोसाइटी विल स्लोली स्लोली उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. 10 साल 12 सालों में एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा. बट शुरुआत घर से होनी चाहिए. Because मैं आपको बता रहा था, right? I started talking to students. Twice a month I take this 2-hour session with my students. That's very good. And I have been blown away by the level of competence, by the knowledge of these students, 11th 12th students. I talk to generally students who are in humanities and commerce, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं. And I have been amazed. तो ये नहीं है कि मतलब जम्मू में मतलब टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, but somehow children in our cities are very restricted by probably the kind of opportunities available. So how do you change that as a, like, schools or government or parents? I mean, how do we encourage these kids to do more? How do we change that environment for them? सी देखो, जैसे कुछ बच्चे, माय डॉटर में कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर से स्टैनफोर्ड गए हैं, कुछ हार्वर्ड में हैं, कुछ यूसी बर्कले. तो इस तरह से बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं और इन अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं. तो अगर बच्चे का उस तरह का माइंडसेट है तो वो वहाँ जा सकता है. अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है, लेट्स पुश हिम, लेट्स एनकरेज हिम. स्पोर्ट्स हैज लॉट ऑफ मनी नाउ. And even kabaddi fetches a lot of money, then hockey, then cricket is like all time high money. मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा तो क्रिकेट में ही है. तो उस तरह से अगर हम बच्चे को एनकरेज करते हैं, तो मैंने वही कहा ना कि जब घर से ये शुरुआत होगी बिहेवियरल चेंज की, पेरेंट बच्चा, बिकॉज बच्चे के दिमाग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही इम्बाइब होता है जो पेरेंट्स या रिश्तेदार बात कर रहे होते हैं. right. चाचे का बच्चा, मासी की बेटी, वो क्या कर रहे हैं, वैसे ही चलता है. जब वहां से शुरुआत होगी, देन स्कूल उसको रिइंफोर्स करे, उस थॉट को रिइंफोर्स करके, भाई नहीं यहाँ जाना है, ये बेटर है, ये एक्सप्लोर कर सकते हो. एक एक्सप्लोर करने दो बच्चे को, फिर उसको लेकर भाई ये पढ़ाओ है तुम्हारा, आप क्या चूज करो जो तुमको सबसे अच्छा लगे. जैसे आपने कहा कि अगर आप यू आर गुड इन
you're best in something, money is not a problem. Yeah. Money will follow, right? So that is where मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर घर से शुरुआत हम करते हैं, स्कूल उसको रिइंफोर्स करता है एट द कॉस्ट बीइंग रेपिटेटिव, सोसाइटी ऑलमोस्ट करेगी। फिर हर घर में यही बात होगी, तो ये नहीं होगा कि वो ये वाला पुश कर रहा है, वो पुश कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटीज या बाहर की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब इस तरह का बच्चा इस तरह के रिसोर्स जब वापस आएगा, और अगर उसको वापस आना है तो यहाँ पे भी हम उस तरह का उसको इकोसिस्टम देना पड़ेगा, Right. तो वो बाहर जाएगा, he'll earn a decent living for himself. So, cities like Hyderabad and Bangalore, I have a friend, he's Japanese, तो इंडिया शिफ्ट किया है। हैदराबाद में देयर इज दिस हब जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए टी हब कहते हैं। हाँ, टी हब, या एग्जैक्टली। सो ही हैज एन ऑफिस इन टी हब, तो व्हाई कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? यस, वी आर कंटेम्पलेटिंग ऑन दैट आल्सो कि जहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस हम सबको दे दें। हम जैसे इस रूम में 5-6 लोग बैठे हैं, आप ए बिजनेस में, मैं बी में, सी डी ई, हम कोवर्किंग स्पेसेस हैं, कोई मार्केटिंग में है, कोई आइडिया, तो एक दूसरे के डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस हो, डेली बेसिस पे उसको कहीं और नहीं जाना है, बिल्कुल। उस पूरी कोवर्किंग स्पेस में उसको जो चाहिए कहीं ना कहीं कॉर्नर में वो लड़का बैठा होगा, लड़की बैठी डिस्कस करना है, यस यू विल गेट ब्रेक में वैसी बात कर रहे हो, कुछ करो, सो यू आइडियाज। सो वी आर कंटेम्पलेटिंग एंड होपफुली इस तरह का स्पेस हम प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को। डू यू एवर एनकरेज योर किड्स टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज? यार देखो आजकल के बच्चे वैसे स्मार्ट हैं, जैसे दे आर लाइक आई मीन दे आर एक्सपोज टू सच अमाउंट ऑफ नॉलेज, तो ये उनको पुश करना किसी के लिए या तुम ये करो, well they well again, और वो भी नहीं, बट आई अगेन जस्ट अर्लियर आई सेड कि भाई ऐसा नहीं है, जो करना है करो, बट बी बेस्ट इन दैट। या बट दोनों पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में हैं, सो बच्चे अभी तक तो कोई डिस्कशन कभी नहीं हुई। नहीं होती है कभी। My wife would tell daughter, you're such a bright, why don't you try? सिविल सर्विसेज, तो अभी तक तो उसका एकेडमिक्स So, की तरफ भी रुझान। योर वाइफ हैज टोल्ड देम बट यू हैव नेवर टोल्ड? नहीं, आई डोंट, ठीक है। ओके, My wife, like at times, on the not she, it's not that she pushes them, but कि भाई सुमिता you're such a bright child, why don't you अभी सेकेंड ईयर हो जाएगा 2 साल, फिर then she would give example A B, देखो you're bright, तो हो जाएगा, तो she would like no, I don't want to get into this, but let's see, I mean it's her destiny, whichever path she chooses, we just want that whatever path she chooses, she has to be best in that. This is what I tell them: be the best in whatever you do. absolutely. Yes. So your children also studied in Jammu. तो जम्मू का जो एजुकेशन सिनेरियो है, where do you think, I mean, we know, I mean, a lot of improvement is needed for colleges and higher education. So what's the next step for Jammu in that respect? ठीक है, आपने मेरे को बोला कि private universities we are allowing and everything, but getting outside investment is a little tough for Jammu because जो perception है बाहर की लोगों को ये है कि वो जम्मू और कश्मीर इकट्ठा ही कोलेट करते हैं कि when people talk about Jammu, I mean, you go to Delhi, you go anywhere, you say Jammu and people will not recall Jammu, right? Then you say Jammu Kashmir, fair. So people don't realize that Jammu is a lot safer, sort of. I mean, Kashmir is also a lot safer now, but Jammu's never had those issues. So how do we improve higher education? Most kids, when they can afford to go outside Jammu, they go outside Jammu for college. Up to 12th, I think most of very good schools have come up in the Yeah, city, and very good schools. Schooling is not Schooling an is issue better. today. I fully agree with you that we need to improve our colleges. Colleges, they don't. I mean, एक तो कॉलेजेस में उस तरह का रिसोर्स जो मुझे लगता है कि जिस तरह के बच्चों को, देखो बच्चा आज की डेट में पहले ही जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो पढ़ के आ रहा है, उसको पता है सब बारे में। Right. वो क्यों आपकी क्लास में सुनेगा आपको और he would glued on to the lecture of the teacher unless आप कोई इंटरेस्टिंग चीज ऐसी बता रहे हो जो उसने ऑलरेडी नहीं पढ़ी हो। Right. सो टीचर को भी बच्चे से एक कदम आगे होना है, टीचर को खुद पढ़ना है, बिल्कुल। राइट? तभी जाके उसका क्लास इंटरेस्टिंग होगी, वो
मेरी बेटी मुझे सुनाती है, देयर इज अ टीचर, हर फेवरेट टीचर, बट बाकी एबीसी अगर कोई टीचर होंगे भी, देयर इज वन टीचर शायद स्वंजिता मैम है शायद, तो शी लव्स टू अटेंड, और कुछ भी हो जाए उसकी क्लास लेनी है, बिकॉज शी दैट कनेक्ट दैट इंटरेस्ट की मैं कुछ सीखूंगी, द वे शी स्पीक्स, द वे शी डिलीवर्स हर लेक्चर, द अमाउंट ऑफ नॉलेज शी हैज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो वो एंगेजमेंट मुझे लगता है कि So, but how do we improve the colleges in Jammu? नो, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट के पास मैजिक वॉन्ड नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है तो अब देखो, You worked in education also, ना? तो मैं हाँ, इसलिए आपका आई एग्री विद यू, बट अब देखो कि हमारा पहले एक तो देखना कि 12th के बाद जो ग्रेजुएशन में 12वीं करके बच्चा जा रहा है, अब देखोगे मोरल वो स्टैटिक है या कम होता जा रहा है, right. एक तो वो देखना है। सेकंड है कि लास्ट ईयर मुझे लगता है 1-2 सालों से हम ये कह रहे थे कि जो जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वी हैव इन द कॉलेजेस, वो खाली रह रही है। मतलब पहले तो वी हैव टू लुक फॉर द रीजंस कि भाई सीट्स क्यों खाली रह रही हैं। दो कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सेकंड ये हो सकता है कि उसको लगता ही नहीं कि मैं कॉलेज में पढ़ के कुछ होगा, वो शायद वोकेशनल या स्किल की ओर हो जा रहा है। तो अगर सीटें खाली रह रही तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, चाहे वो कॉलेज जो हायर अथॉरिटीज है, जो 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 यूनिवर्सिटीज हैं, जो टीचर्स हैं, रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी बहुत जरूरी है। अदरवाइज वैसे ही कॉलेज में जब बच्चा घुसता है वो फ्रीडम, वैसे वो अपने आप को फ्री समझता है, Right. वो वैसे भी मजे के उसमें, तो 3 साल कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। बाय द टाइम ही रीचेज यूनिवर्सिटी, वो 3 साल वो कैसे गुम हो गए होते पता नहीं। पेपर उतना ही पढ़ना है जितना पेपर देना है, बट दैट इज नॉट स्टडी। Absolutely. वो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस वो नहीं कर पाता बच्चा, तो वो समझता नहीं है, वो तो आता है पहले दिन रोट मार लिया, अगले दिन उड़ेल दिया, दैट्स नॉट रियल टीचिंग ना। तो इसलिए हमारे अच्छे ग्रेजुएट्स से अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं निकलते, बड़े कम है। तो आपने you worked in government for 22 years now, and whatever perception people may have, I know how hard most people I know in government work, right? So there must be some habits you have which help you manage your workload better. So habits that help you manage better, or what habits would those be? See, one thing like public services, like you can't say that there is a difference between we say we are public servants, we are there for public service, but bureaucracy has a very strange of getting things on your head. The authority you get, the power you get. At times, I feel that youngsters, when they come into the services, and they keep the distance between them and the public for which they are there for, that gap keeps on increasing. That is not. This is not how you do public service. And one thing I have, I mean, inculcated in me, or it's inherent, that is empathy. I love. I mean, the person on the other side of the table. If I am on the other side of the table, how I want to be treated by the person sitting on the chair. Yeah, that I've seen in your office. Right. Yes, So absolutely. this is inherent in me. I mean, मैं उसको बनाता नहीं हूँ, मैं this comes within. So when I empathize कि जो शख्स टेबल के उस तरफ है, और मैं जिस तरह का व्यवहार मैं उस तरफ रहूंगा तो चाहूंगा मुझे उस तरह से उसको ट्रीट करना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी में या पब्लिक सर्विस में, यू हैव टू बी गुड लिसनर। Right. कई लोग ऐसे थे, जब मैं एडीसी भी था यहाँ पे, तो मेनी पीपल वुड कम, खोड़ से, चौकी चौरा से, दूर दूर से लोग आते थे। तो जनरली अगर आप उनको गुड एयर नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, तो वो बेचारा इतना किराया खर्च करके धूप में आ रहा है True. और आप उसको सुन भी नहीं रहे हैं, तो एक तो निराश होके जाएगा, 4-5 गालियां मार के जाएगा। तो मैं उसका प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर आपको सही से सुने और उसको गाइड कर दें कि ऐसे नहीं, ये आप गलत तरीके इसको ऐसे करो, 50% प्रॉब्लम तुम्हारी वहां खत्म हो जाती है। Right. राइट। तो वो एक, यू हैव टू हैव अ गुड एयर, यू हैव टू हैव एम्पैथी इन यू, सो दैट आप पब्लिक सर्विस कर सके। अदरवाइज तो इट्स एज ए पब्लिक सर्विस क्या है। But you have a lot of very high workload, right? काम तो कभी खत्म होता नहीं. So how do you manage to? I mean, how do you manage that workload? ऐसा कुछ नहीं है। I mean,
मतलब देखो प्रायोरिटीज रहती हैं कि आज अगर कुछ सेक्रेटेरिएट से भी कुछ हायर अप्स ने कोई काम दिया तो मुझे प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे आज 5 तक या 6 तक ये खत्म करना है, बाकी काम है वो रुक सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस तरह की मैंने Prioritizing. प्रायोरिटाइजिंग, ओनली प्रायोरिटाइजिंग कि ये प्रायोरिटी ये मुझे भेजना है, ये काम रुक सकता है, ये नहीं कि वो वेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का। मैंने तो दिस इज ऑल लाइक मैनेजिंग, इट्स ऑल मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। So you worked with a lot of probably politicians and a lot of senior bureaucrats and everything. So what would be one or two qualities in these people in that you think are essential to be a good leader? देखो एक तो ये जो लोग इस स्तर पे होते हैं या इस लेवल पे होते हैं, तो पॉलिटिशियंस ऑल्सो, आई मीन पॉलिटिशियन अगर मतलब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा यार, एक चीज तो इन लोगों में होती है, वाइज, दे आर फुल ऑफ विजडम बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, द वास्ट एक्सपीरियंस दे हैव, रेगुलरली इन टच विद द पीपल, ये विजडम के धनी होते हैं ये लोग। तो चाहे वो उस तरह का नॉलेज, जिस तरह का कोर स्किल्स कॉम्पिटेंसी वैसी नहीं, बट दे आर वाइज पीपल। और लीडर कभी देखोगे कभी ऐसे सॉल्यूशंस उसके पास होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होता है, दैट आई हैव सीन। सेकेंडली जो ब्यूरोक्रेट जो हम सीनियर्स के साथ काम करते हैं, देखो 25-30 साल का एक्सपीरियंस ये रहता है और कम से कम 10-15 महकमों में काम किया है, तो एक मैक्रोव्यू, एक नॉलेज सीनियर्स को, या जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है BW सर, आई हैव वर्कड विद हिम आल्सो। तो जब आप इस पोजीशन पे आप पहुंचते हो तो आपने कितने सारे डिपार्टमेंट से ऑलरेडी काम करा हुआ है एंड आपको हर डिपार्टमेंट का पता है, एक व्यू आपके पास है, तो वो वहां से उस एक वेंटेज पॉइंट से वो नीचे देखते हैं, तो थिंग्स गेट इजी फॉर देम एंड ओनली चैलेंज फॉर देम इज कि वो चीजें एग्जीक्यूट कैसे करनी है, एंड दे डू इट, उसमें मैनेज करते हैं कैसे करना है, प्रायोरिटीज क्या है, क्या चाहिए, दे आर वेरी बिजी पीपल एंड दे डू इट वेरी एक्सेप्शनली वेल। So any entrepreneurs, any you know, maybe could be politicians, could be any personality, any somebody that you admire, somebody that you love to read about, somebody that you follow. एक किताब पढ़ी थी मैंने, आई फॉलो नारायण मूर्ति ऑल्सो, उनकी एक किताब थी, उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें वो लिखते थे, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए देश में, किस तरह की होनी चाहिए। तो यार अभी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं बताऊँ, OTT पे, प्राइम वीडियो पे, टाइटन पे, द स्टोरी ऑफ टाइटन, वो टाटा पे, और वो जो Xerxes Desai जो टाइटन जिन्होंने शुरू की थी, तो इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स बेस्ड ऑन अ बुक, आई नॉट रेड द बुक, बट जो मैंने सीरीज देखी है एक्सेप्शनली वेल, कि किस तरह से एक ब्रांड क्रिएट करना अपने घर का। फिर जब एडवर्टीजमेंट्स, मुझे वो 90s के रामायण महाभारत का टाइम याद आएगा, टाइटन की घड़ी की ऐड आती थी, वो जो म्यूजिक पीस था, तो किस तरह से उन्होंने वो ब्रांड क्रिएट किया, तो इस तरह की चीज़ें तो मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो बट यस, हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, किस तरह से वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए, किसी भी बिजनेस का अगर वो एक मतलब बिजनेस हाउस है, वो एक 2-3 जनरेशन्स के बाद, बट अगर आप टाटास को देखें, बिरलास को देखें, कितनी 4-5 जनरेशन्स आगे जा चुके हैं, दे सर्वाइविंग। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यूज परिवार में रही होंगी जो बिजनेस को इतनी जनरेशन्स तक चला रही हैं। तो वो चीजें, वो जो सब, जैसे टाटा है, टाटा का कोई भी आप ले ले, तो एक सबसे पहली बात आती है कि टाटा के प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सकते हो यार, टाटा ये चीज नहीं बना सकता टाटा, तो उस ट्रस्ट को आम जनता अगर उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो उस ट्रस्ट को क्रिएट करने में उन्होंने कितनी मशक्कत करी होगी। सो इस तरह की चीज़ें जो है बिजनेस में या अपनी साधारण लाइफ में भी, कोई ऐसी चीज़ें जो आप ट्रुथफुली करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ईमानदारी के साथ करते हैं, वो थ्राइव करती है, वो सस्टेन करती है। उसके लिए आपको कोई वो यू डोंट हैव टू कैमोफ्लेज और समथिंग लाइक दैट, सो वो सस्टेन करती है। तो इस तरह की चीज़ें एक लर्निंग होती है, वी हैव टू टेक। जैसे APJ अब्दुल कलाम की लाइफ थी, बिल्कुल साधारण सिंपल लाइफ, या महात्मा गांधी की बात करें, या इन लोग की बात करें। So what advice would you want to give to anybody who's listening, watching this show? Well, I'm not मैं क्या एडवाइस करूं, बट सिर्फ इतना कहूंगा
कि जीवन बहुत छोटा है, इट्स स्मॉल लाइफ, इसको इसको अच्छे से जियो आप। और जहाँ तक चीज़ें आनी है आपकी लाइफ में वो आके रहेंगी। आपके हाथ में, हिंदी में पुरुषार्थ कहते हैं, आपके हाथ में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप पुरुषार्थ करिए, बाकी जो उसका फल है, उसके जो जो आप कर्म करेंगे उसका फल है वो तो ऊपर वाले ने देना ही है। बट वट एवर वट इज इन योर हैंड इज हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन, विद परसिवरेंस, वो आप करो, उसमें कोई छूट मत करो, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, उस पर छूट नहीं होनी चाहिए, वो आप जम के करो, बाकी बाकी चीजें लीव टू गॉड। So just one last question connected to this. मैं अभी पिछले 4-6 महीने से पढ़ भी रहा हूँ, जिससे भी डिस्कशन करता हूँ. इट्स अबाउट पैशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी. पैशन और प्रैक्टिकलिटी. और how would you if your daughter, your son comes to you and says they're passionate about something, but so how would you guide them? How would you excel in life? You have to be passionate about that. पैशन जब तक, अनलेस यू हैव अ फायर इन द बेली, आप नहीं कुछ कर सकते। मीन्स अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनना या सूर्यवंशी, तो यू नीड दैट passion, एंड दैट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, तो आप वहां तक पहुंच पाए। तो पैशन तो बहुत जरूरी है। फिर प्रैक्टिकलिटी, मेरे प्रॉस क्या है, मेरे कॉन्स क्या है, वर्क ऑन योर प्रॉस। कॉन्स मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। जब हम 90s में टेनिस देखते थे, बोरिस बेकर, स्टीफन एडबर्ग, ये बड़े नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर थे। लेकिन अगर इवान लैंडल को देखिए, इवान लैंडल ने भी 5 या 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। हार्ड वर्किंग, वाज अ हार्ड वर्किंग गाय। उसके पास वो टैलेंट नहीं था। he would never give up. yes. आप रोजर फेडरर और नडाल को ले लो। रोजर फेडरर नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन नडाल ही वुड नॉट गिव अप। और उसको क्ले का चैंपियन बोलते थे, लेकिन ग्रास में भी Wimbledon he won. बट आई एम सेइंग इज दैट पहले तो पैशन होना जरूरी है, फायर इन द बेली होना जरूरी है, उसके बाद वर्क ऑन योर प्रोस। ठीक है, जो आपका प्रो है नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं, तो उस पर उतना टाइम वेस्ट क्यों करना। पहले अपने स्ट्रॉन्ग करो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, देन वर्क ऑन योर कॉन्स। धीरे धीरे वो भी 50% 60% आ जाएंगे, देन यू आर सक्सेसफुल। चलो, thank you sir, thank you for your time. It was great talking about all this today. थैंक यू It's a lot. सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you.